محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے. اس پر عبداللہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی تو یہودیوں کے دشمن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی. سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا. اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے. یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے. اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھری شروع کر دیں گے. چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں. ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے. اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے. وہیں وہ ان کی برائی کرنے لگے. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. آنکھوں کی روشنی پروگرام دوسرے مرحلے کا آغاز. عوام کو ہر سہولت فراہم کرنے اور ضرورت کا خیال رکھنے والی حکومت BRS ارکان اسمبلی. PDS چاول کی غیر مجاز منتقلی کو روکنے اور اس میں ملوث افراد پر کارروائی کا کانگریس کا مطالبہ و احتجاج. کلکٹریٹ کے گھیراؤ کی کوشش. پولیس نے لیا حراست میں جوائنٹ کلکٹر کو پیش کی تحریری یادداشت. تمام ڈویژنوں میں آنکھوں کی روشنی پروگرام کا آغاز. عوام نے کیا استفادہ. عوام سے بھرپور استفادے کی قائدین کی اپیل. مسافرین کی سہولتوں کے لیے شہر میں سٹی بسوں کا آغاز. مگر مسافرین کی کمی کے چلتے سڑکوں سے سٹی بسیں غائب. اب خبریں تفصیل سے. صحت مند تلنگانہ کے لیے
सीएम केसीआर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के 6वें डिवीजन विनायक नगर के महिला शक्ति भवन में आंखों की रोशनी दूसरे मरहले के इस प्रोग्राम को रियासती वजीर पेमुलर प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सेहतमंद तेलंगाना सीएम केसीआर की दिली ख्वाहिश है, इसलिए इन्होंने गरीब आवाम के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद किया और बताया कि आंखें हो तो जिंदगी परवान चढ़ सकती है, वरना कुछ भी नहीं। तेलंगाना की आवाम को अंधेरों से दूर रखने के लिए ही आंखों की रोशनी प्रोग्राम का सीएम केसीआर ने आगाज किया है। देश भर में ऐसे मुफीद प्रोग्रामों को किसी भी जगह अमल में नहीं लाया गया। आंखों की तशखीस कराना हो तो पहले शहर को जाना पड़ता था, अवाम में शऊर बेदारी नहीं थी और अब ज्यादातर अवाम को आंखों पर मुज़िर असरात हो रहे। इन सब तकालीफ को दूर करते हुए अवाम तक गांव-गांव में सीएम केसीआर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम को अमल में लाया। దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మరి తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. మరి బంగారు తెలంగాణ సాధించడం కోసం కొట్లాడి వచ్చినటువంటి తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ మార్చుకోవడమే మన ముందర ఉన్నటువంటి కర్తవ్యం అని చెప్పి రకరకాలైనటువంటి స్కీములు తీసుకొస్తే మరి నిన్న ఖమ్మంలో జరిగినటువంటి సభలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ గారు మాట్లాడారు. దేశంలో ఇలాంటి కంటివెలుగానే ప్రోగ్రాం నేను ఎప్పుడు వినలేదు, ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను ఢిల్లీ వెళ్ళగానే వెంటనే ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో నేను ఇది పెట్టబోతున్నా అని చెప్పేసి వారు ప్రకటించారు. మరి కేవలం కంటివెలుగే కాదు, చాలామంది చాలా స్కీముల గురించి మాట్లాడినారు. ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఒక పెద్ద మనిషి కూర్చుంది, ఆమెకు పోయి నేను చెవులు అడిగిన, అమ్మ నీ కళ్ళద్దాలు ఇచ్చిరు కదా సంతోషమేనా అని అడిగిన. నేను ఆ మాట అడుగుతా ఏం చెప్తుందంటే, సార్ నేను బతుకున్న రోజు నేను కేసీఆర్కే ఓటేస్తాను అని చెప్తుంది. అమ్మ నేను ఓటు గురించి కాదు, కళ్ళు మంచి కనబడుతున్నాయి అని అడుగుతున్నా అని చెప్పిన. అంటే వాళ్ళ మనసులో నుంచి వచ్చినటువంటి మాట, ఆ ప్రేమ. ఇప్పుడు చాలామంది వక్తలు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ని పూర్తిగా చేస్తారు. మిషన్ భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే 100%. आंखों की रोशनी प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की मिसाल। सीएम केसीआर गरीब आवाम के हक में अवाम इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन मंडल मुस्तकर में जराई मार्केट के रईतु वेदिका में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बोधन एमएलए शकील आमिर ने रिबन काटते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में आंखों से मुतासरीन की काफी भीड़ पाई गई। मुकामी अवाम और मुख्तलिफ कॉलोनियों से आए अफराद ने अपने आंखों की तशखीस कराते हुए मुफ्त दवाओं और आंखों के चश्मों को हासिल करते हुए इस्तिफादा हासिल किए। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना की अवाम को अंधेरों से दूर रखने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। गरीब अवाम को, मुतासिर अवाम को आंखों का इलाज करवाने में काफी खर्च करना पड़ रहा। कुछ लोग आंखों की रोशनी के लिए मकरूज हो रहे हैं। अवाम की इस तकलीफ को दूर करने के लिए सीएम केसीआर गांव-गांव आंखों की रोशनी प्रोग्राम को मुनक्किद कर रहे हैं। गरीब आंखों से मुतासिर अफराद इस कैंप से मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। दीगर आंखों की बीमारियों को दूर करते हुए राहत हासिल करें। इस प्रोग्राम में इनके हमरा बोधन तहसीलदार वीरा प्रसाद, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन शकील, बीआरएस पार्टी टाउन सदर रविंदर यादव, काउंसलर्स राधा कृष्णा, दीगर कायदीन, तिब्बी अमला मौजूद था। किसी का बढ़ गया दिख रहा नहीं, तो इन तमाम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से, रियासत तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से केसीआर साहब की तरफ से फ्री आई चेकअप किया जा रहा है। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि आके इस आई कैंप का जो हुकूमत के जानिब से कंटी वेलगू प्रोग्राम चल रहा है, इसको सक्सेस करिए। इसको नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आपके मोहल्ले में जो भी गरीब लोग हैं या उम्र ज़दा लोग हैं, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, मेहरबानी करके उनको कम से कम हम उनकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक तो आप अगर लेके आ गए तो ये बहुत बड़ी मदद होती। इंसानियत का एक अच्छा काम अगर आप लोगों को करना है तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को इधर लेके आइए और उनको जो है यहाँ पे उनके आँखों के इलाज के लिए तमाम सहूलतें यहाँ पे है। और अगर ऑपरेशन करना भी पड़ा तो उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कराएंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। इसके अलावा अगर हैदराबाद जाके भी स्पेशलिटी
अगर कोई सर्जरी भी ज़रूरत है तो हुकूमत की जानिब से तमाम चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम से गुजारिश। आंखों की रोशनी प्रोग्राम अवाम की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए इस प्रोग्राम का कोई सियासी मकसद नहीं, तेलंगाना अवाम में खुशी लाना ही अहम मकसद है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। अवाम की रहनुमाई अंधेरे से दूर रखने की सीएम केसीआर की ख्वाहिश ने गरीब अवाम के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इंसान को अंधेरे से बाहर लाना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। शहर के विनायक नगर महिला भवन में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इन्होंने इफ्तिताह किया और इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुद अपने आंखों की तशखीस करवाई और चश्मा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम में कोई सियासत छुपी हुई नहीं है। इसके जरिए वोटों को हासिल करने की कोई ख्वाहिश या कोई मकसद ना होने की बात बताई। दुनिया भर में कहीं भी ऐसी कोई स्कीम राइज नहीं की गई और ना कोई स्कीम अमल में लाई गई। गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के तरीके पर सीएम केसीआर ने बहुत सोच सूझबूझ के साथ इस स्कीम का आगाज किया। आज के इस दौर के हालात के हिसाब से अंधेपन को दूर करने के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम को अमल में लाया गया। आंखों की रोशनी के पहले मरहले में 1,50,00,000 अफराद ने आगे आकर अपनी आंखों की तशखीस कराते हुए राहत पाने के बाद दुगना तिगना अवाम आंखों की बीमारियों से मुतासिर पाए गए और सिर्फ निजामाबाद जिले में ही 7 लाख अफराद ने गुज़िश्ता में आंखों की तशखीस करवाते हुए 2 लाख से ज्यादा अफराद को आंखों के चश्मे तकसीम किए गए और अब 18 साल से ज्यादा अफराद की आंखों का मुआयना किया जा रहा है। हर तशखीस के बाद जरूरतमंद को आंखों का चश्मा और दवाएं दी जा रही और जिला भर में 12 लाख से ज्यादा अफराद को स्क्रीनिंग टेस्ट मुनाफिद करने के लिए 70 से ज्यादा तिब्बी टीमों का इंतजाम लाया गया। 70 से ज्यादा तिब्बी टीमों का इंतजाम लाया गया और इन कैंपों को गांव, मंडलों, जिलों में 100 दिन चलाया जाएगा। इन कैंपों के जरिए सरकारी तौर पर बेहतर मियारी इलाज अमल में लाया जाएगा। अवाम इन कैंपों के जरिए मुस्तफीद हो। इंसानी जिस्मानी आज़ा में आंखों की रोशनी बहुत अहमियत रखती है। आंखों की रोशनी चली जाए तो इंसान का मुस्तकबिल अंधेरे में गुम हो जाता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए अपनी आंखों का ख्याल करते हुए तशखीस के जरिए डॉक्टरों के मशवरों को अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी डी राजेश्वर, मेयर डी नीतू किरण, पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, महिला फाइनेंस चेयरमैन अकोला ललिता, रियासती महिला कमीशन मेंबर एस लक्ष्मी, नुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, दीगर भी मौजूद थे। గమనించి మరి స్పెషలిస్టుల సౌకర్యం లేని మరి ప్రాంతాలు ఎందరో ఉంటారు, ఎన్నో గ్రామాలు ఉంటాయి కాబట్టి వారందరికీ కూడా ప్రభుత్వమే ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు చేయించి మరి కావలసినటువంటి మందులు ఇవ్వడం కావచ్చు, లేదు కళ్ళద్దాలు అవసరం ఉంటే కళ్ళద్దాలు ఉచితంగా ఇవ్వడం కావచ్చు, ఇచ్చి వారి కంటి వెలుగును ప్రసాదించాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. మరి దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ ఇప్పటికే నిజామాబాద్ జిల్లాలో 7 లక్షల మందికి మరి స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది. దాని 50 లక్షల మంది కళ్ళద్దాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈసారి మొత్తం సాచురేషన్ మోడ్లో ఎక్కువ మనిషి కూడా మిగలకుండా అంటే 12 లక్షల మందికి స్క్రీనింగ్ చేసే ఏర్పాట్లు ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ గారు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే మరి 2 లక్షల కళ్ళద్దాలు అవసరం ఉంటాయని భావించడం 66,000 కళ్ళద్దాలు ఇప్పటికే జిల్లాకు చేరుకున్నాయి, మిగతాయి కూడా వస్తాయి. అయితే మరి ఇది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డుకు పోతుంది తొందరలోనే. ఎందుకంటే ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాం అనేది ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఐ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కోట్ల మందికి, 4 కోట్ల జనాభా ఉన్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 కోట్ల మంది పైచిలకు 18 వయసు సంవత్సరాల పైన వాళ్ళు ఉంటారు. 3 కోట్ల మందికి మరి వాళ్ళ ప్రభుత్వం తరఫున కళ్ళ పరీక్షలు చేయించడం అనేది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. ఇది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ జరుగుతుంది. కేసీఆర్కే సాధ్యం, ఇది వేరెవరికి సాధ్యం కాదు, వేరే వారికి ఆలోచనలోకి కూడా రాదు. ఆలోచన ఆయనకు ఎట్లా వస్తుందో భగవంతుడు, మరి భగవంతుడు ఆయనని తెలంగాణ ప్రజల కోసమే పుట్టించిండని అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి చూస్తూ ఉంటే. ఆయన ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా మానవీయ కోణంలో మనిషి కేంద్రంగా आंखों की रोशनी प्रोग्राम
प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज इमाम तंजीम इंचार्ज निजामाबाद व मुकामी इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने किया। सेंटर का दौरा, तफसीली जायजा लिया, अवाम को हर मुमकिन सहूलत के साथ इस स्कीम से मुस्तफीद करने का मशवरा, अवाम इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। आंखों की रोशनी दूसरे मरहले के प्रोग्राम का आज से आगाज हुआ। 31वें डिवीजन में आंखों की रोशनी प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी इमाम तंजीम इंचार्ज निजामाबाद शकील अहमद फाजिल व मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने शिरकत की। इस मौके पर तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स, ANM के जिम्मेदारान मौजूद थे। मेहमानान की बाकसरत गुलपोशी की गई और मुनव्वर अली ने वालहाना इस्तकबाल किया और सेंटर का तफसीली दौरा किया। अवाम की तशखीस और दवाइयों पर मालूमात हासिल की। आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मकसद अवाम को अमराज चश्मे से महफूज रखना और आंखों के अमराज होने पर इस आंखों की रोशनी प्रोग्राम से फायदा पहुंचाना है और तिब्बी व असली आलात के जरिए आंखों की तशखीस हस्बे जरूरत मुफ्त अद्वियात और जरूरत पर मुफ्त चश्मा और माहिर चश्मा डॉक्टरों की मौजूदगी में ऑपरेशन भी किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर नाबीनापन के खात्मे के लिए हुकूमत ने इस स्कीम को मुतारिफ कराया। इमाम खातिन ने कहा कि अवाम इससे खूब इस्तिफादा हासिल करे और अवाम की सहूलतों के लिए इमाम की जानिब से मुस्बित अंदाज में नुमाइंदगियाँ किए जाने का भी इजहार किया। आज डिवीज़न नंबर 31 में गवर्नमेंट की तरफ से आँखों के टेस्ट का जो प्रोग्राम लगाया गया है, इसमें आए हुए तमाम ही ज़िम्मेदार और डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पर तमाम ही आवाम का महल्ले की आवाम का आँखों का मायना किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जिसका अगर आँखों का नंबर लगता है उसके लिए उसको फ्रेम का और लेंसेस का भी इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से है। आवाम के से तमाम ही आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने आँखों का मायना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो KCR साहब जो लगाए हैं प्रोग्राम इलाज का, आइनों का, जो आँखों का, इससे पूरे महल्ले की पब्लिक बहुत खुश है और जिसको भी मार्केट में जो नहीं जा सकते उन्हें आके फ़ायदा उठा सकते हैं। 56वें डिवीजन में आंखों की रोशनी दूसरे मरहले का मुकामी BRS कॉर्पोरेटर बबलू खान के हाथों आगाज। अवाम को सहूलतों के साथ इस स्कीम से फायदा पहुंचाए, नाबीनापन खत्म करने और अवाम को अमराज चश्म से महफूज रखने के मकसद से हुकूमत का आंखों की रोशनी प्रोग्राम अवाम इस्तिफादा हासिल करे। BRS हुकूमत, अवाम की हुकूमत, बबलू खान का बयान। शहर के 56वें डिवीजन अहमदपुरा कॉलोनी में आंखों की रोशनी प्रोग्राम सेंटर का मुकामी TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान के हाथों आगाज हुआ। इस मौके पर तिब्बी अमला, सियासी कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। BRS कॉर्पोरेटर बबलू खान ने सेंटर का तफसीली दौरा किया, तिब्बी आलात व अद्वियात पर मालूमात हासिल की और कहा कि इज्तिमाई काविशों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं ताकि आंखों के अमराज से परेशान गरीब अवाम को भरपूर फायदा मिल सके और कहा कि हुकूमत गरीब अवाम की जरूरियात और परेशानी को जहन में रखते हुए गरीब व मुतवस्सित तबके की सहूलतों के लिए कई एक फलाही प्रोग्राम रूबे अमल ला रही और BRS हुकूमत अवाम की हुकूमत होने का इजहार किया और इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की अवाम से अपील की। And as this camp is from the BRS party, so I would like to thank all the KCR related members and especially KCR that he thought of our people, that no one can think about us, that what problems we are suffering, he thought and he arranged this camp. And what else, that ward number 56, our area corporated Bablu Khan sir, yes, I am personally very grateful to him that he thought of our problems and arranged this. And yes, he's a public and social worker also. Every time he shows us that he is the real one who can stand by his side, by his opinion, by his talks, that what he said, he did it. I heartfully and beside all the public, I'm thankful to all the KCR members and Bablu Khan sir for supporting and encouraging these kind of camps. Thank you so much. धान घोटाले के जिम्मेदार ओहदेदारों कायदीन की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाते हुए केस दर्ज करे। जिला कलेक्टर चैम्बर में कांग्रेस कायदीन की जबरदस्ती।
शहर के कांग्रेस पार्टी की क़यादत में धान घोटाला करने वालों पर तहक़ीक़ात के जरिए केस दर्ज करने की और एक्शन लिए जाने की मांग करते हुए रैली मुनाकिद की गई। जिला कलेक्ट्रेट के गेट कांग्रेस कायदीन जबरदस्ती खोलते हुए कलेक्ट्रेट के अहाते में पहुंचकर कलेक्ट्रेट के चैम्बर में घुस गए और कलेक्टर को हाजिर होने का पुरजोर मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। मौके पर जिला कलेक्टर के मौजूद न होने पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने इस नारेबाजी का मकसद पूछे जाने पर कांग्रेस कायदीन ने कलेक्टर को सामने आने का मुतालबा किया। इस मौके पर रूरल सीआई नरेश ने कायदीन को समझाने की कोशिश पर ना मानी। उसी वक्त एसीपी वेंकटेश्वर लू वहां पहुंचकर कायदीन को समझाने की कोशिश की, जिस पर कायदीन धरने से नहीं उठे। तभी पुलिस ने जिला सदर मानला मोहन रेड्डी, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु, दीगर कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इस मौके पर डीसी सदर मानला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि धान घोटाले के जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाते हुए सजा देने का मुतालबा किया। हम कलेक्टर चैम्बर के पास खामोशी से एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने हमें जबरदस्ती गिरफ्तार किया। बिना कोई वजह कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी बड़ी शर्म की बात है। धान घोटाला जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने तक एहतजाज जारी रहेगा। कांग्रेस डीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। అదే విధంగా బోధన్ ఎమ్మెల్యే వీరు అంతా కూడా గత 3-4 సీజన్లుగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని పక్కతోన మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాలకు అమ్ముకొని ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన బియ్యాన్ని చెల్లించకుండా ఈ ఇష్యూలో అధికార పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడని, అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్లర్లు ఉన్నారని జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిగా వారికి సపోర్ట్ చేస్తూ వారు రైస్ మిల్లర్లో ధాన్యాలు లేకున్నా ధాన్యాలు ఉన్నాయని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా రైస్ మిల్లర్లతో ఈ స్థానిక అధికారులు కుమ్మక్కరైన మాట నిజం। ఈ విషయాన్ని మేము అడగడానికి వస్తే కలెక్టర్ గారు లేకపోగా శాంతియుతంగా సైలెంట్గా కూర్చున్నటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త పైన పోలీసులు నిర్దాక్షిణ్యంగా చివరికి నా పైన కూడా దాడులు చేస్తూ బట్టలు చింపుతూ విపరీతం ఈడ్స్ కచ్చుకుంటూ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపైన దాడులు చేసిరు। ఇది ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ యొక్క వైఫల్యాన్ని కప్పించడానికి పోలీసుల మీద జరిపిస్తున్న దమనకాండ ఇది। కావున దయచేసి ఈ విషయంలో ప్రజలు గమనించాలా। टीआरएस को संबंधिंచిన ఎమ్మెల్యేలు मंत्री यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। आंखों से मुतासिर गरीब अफराद इस आंखों की रोशनी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो। सीएम केसीआर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम के लिए
300 करोड़ का फंड्स मंजूर करते हुए तेलंगाना के अवाम को एक नई राह बताई। तेलंगाना हुकूमत के इस प्रोग्राम को लेकर बाजू रियासतें दिल्ली, पंजाब जैसी रियासतों में भी अमल करने का चीफ मिनिस्टर्स का तयख्खुन। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन में सरकारी जूनियर कॉलेज में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर आंखों के माहिर डॉक्टर ने खुसूसी आलात के जरिए कैंप में आंखों के मुतासिरीन की तशखीस करते हुए मोतिया बंदू पाए जाने पर ऑपरेशन के लिए जिले के बड़े दवाखाने को मुंतकिल किया। दीगर आंखों की बीमारियों की तशखीस करते हुए इन्हें दवाएं, आंखों का चश्मा दिया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि देश में कहीं भी सरकारी तौर से अमल में ना लाई हुई स्कीम को सीएम केसीआर तेलंगाना रियासत में आगाज करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस प्रोग्राम की मिसाल लेते हुए पंजाब और दिल्ली के रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने भी आगाज करने का ऐलान किया। सीएम केसीआर ने तेलंगाना रियासत में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के लिए 300 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। सीएम केसीआर ने इस प्रोग्राम को हर जिला, हर गांव में 100 दिन जारी रखने का ऐलान किया है और जल्द ही तेलंगाना में हेल्थ प्रोफाइल को जारी रखते हुए सेहतमंद तेलंगाना के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से इनेकाद किए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम से अवाम मुस्तफीद हो। कोटगिर पोतंगल तहसीलदार श्रीकांत राव रमेश ने अवाम से अपील की। कोटगिर ग्राम पंचायत ऑफिस में और पोतंगल के रैतु वेदिका भवन में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को जेडपीटीसी शंकर पटेल मुकामी सरपंचों के हमरा रिबन काटते हुए इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस कैंप में डॉक्टर विद्या सुप्रिया किरण ने मरीजों की तशखीस करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दी। अंधकारमे కాలున్నా చేతులున్నా ప్రపంచాన్ని చూడలేరు, కుటుంబంలో ఎవరున్నారో వారి ముఖం చూడలేరు, జీవితాంతం కళ్ళు పోగొట్టుకొని బాధపడేటువంటి అనేక మందిని మనం అక్కడక్కడ చూస్తున్నాం. ప్రజలకు కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాం ఒకవేళ ప్రారంభించకపోతే ఇదంతా బాధ కలిగేది మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, పేద కుటుంబాలకు. ఆ మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాలు కానీ ఇంకితర కుటుంబాలు కానీ దూర ప్రాంతాల వెళ్ళలేక తన ఊర్లోనే ఉన్నటువంటి వారికి తమ ఊర్లోనే కంటి పరీక్ష చేసేటువంటి కార్యక్రమమే ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం. ఇది భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం చేస్తలేదు. ఈ చూపే ప్రపంచానికి మనకు భగవంతుడిచ్చిన వరం. చూపు లేకపోతే ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా, ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చినా ఆ జీవితానికి వ్యర్థం అది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రులు కూడా మా రాష్ట్రంలో కూడా ఇది తెలంగాణలోనే ఉంది కదా. नौजवानों की इस्लाह और नौजवानों को सेहतमंद बनाने के मकसद से मुनाफिज शुदनी जमीयतुल उलमा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को कामयाब, शिफाफ और दिलचस्प बनाने में काफी मेहनत और अहम किरदार अदा करने वाले ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबरान वो ऑफिशियल एम्पायर्स को जमीयतुल उलमा ने पेश की तहनीत और शुक्रिया अदा किया। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान की मिली खिदमत काबिल सताइश। T20 टूर्नामेंट के इनेकाद से नौजवानों में खेल का जज्बा पैदा हुआ। नौजवानों को बेरवी से रोकने के लिए हाफिज लई खान की सोच और कोशिशों को सलाम। शहर के मशहूर ऑलराउंडर ऑफिशियल एम्पायर्स आतिफ फजल खान अलमारूफ केपी के तासरात। जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की सदारत में 25 दिसंबर तक 15 जनवरी मुनाकिद शुदनी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट असहद कामयाब रहा। इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइज कमेटी जिनमें असलम खान, मुसेब शेख, उमर जिम्मी, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शोएब शामिल है ने खूब मेहनत से इस टूर्नामेंट को यादगार बनाया। तो वहीं ऑफिशियल एम्पायर्स आतिफ फजल खान और शाहरुख ने शिफाफ एम्पायरिंग से टूर्नामेंट को तनाज़ात से पाक रखा, जिस पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान ने उन तमाम को तहनीत पेश करते हुए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तमाम ने हाफिज लई खान की काविशों, मिली व समाजी खिदमत की खूब सताइश की। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से नौजवानों के अंदर खेल के ताल्लुक़ से स्पोर्ट्स में उनको जोड़ने की खातिर बुरी आदतों और बुरे शौक़ से दूर करके
खेल के मैदान में आगे लाने की खातिर जमीयत उलमा का एक T20 टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ जो 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक 21 या 22 दिन तक चला। उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जगह पर मौके पर सुबह से शाम तक रहते हुए ये इन नौजवानों ने ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसके लिए बहुत जद्दोजहद करे, कोशिश करे और रात दिन उसके लिए ख़ुद भी वो क्रिकेट के शौकीन हैं। इतवार के दिन जो फाइनल हुआ जमीयत उलमा हिंद, उसके लिए मैं हाफिज़ लेख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया और इस टूर्नामेंट के ज़रिए एक मैसेज पूरे निज़ामाबाद के आवाम को ये देना चाह रहे हैं कि नौजवान गलत रास्तों की तरफ, गलत बेरारोई का शिकार ना हो और अपनी दिलचस्पी खेल कूद के मैदान में, तालीम मैदान में आगे बढ़ाएं। इसकी कोशिश थी और मैं सारे टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करा और सारी टीमें डिसिप्लिन के साथ अच्छे से मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और हमारे स्पॉन्सर का बेहतरीन सपोर्ट रहा और इसकी वजह से टूर्नामेंट बेहतरीन तरीके से कामयाब हुआ। इंसानी जिस्मानी आज़ा में आंखें बहुत अहमियत रखती है। आंखों पर लापरवाही बरतने से इंसान का मुस्तकबिल अंधेरे में गुम होने लगता है। सरकारी जानिब से इनेकाद किए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम से अवाम मुस्तफीद हो। नवीपेट मंडल BRS कायदीन का बयान। नवीपेट मंडल मुस्तकर और मंडल के अभंगापट्टनम कमलापुर गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम के पहले दिन MPP श्रीनिवास, ZPTC सविता, सरपंच फोरम सदर ATS श्रीनिवास, अभंगापट्टनम सरपंच रमा देवी, कमलापुर सरपंच जी सुरव्वा, दीगर ओहदेदारों के हमरा शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर MPP श्रीनिवास, नवीपेट सरपंच ATS श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें। आंखों से मुतासिर अफराद के लिए CM KCR की जानिब से गरीब अवाम के लिए हम है ना की बात कहते हुए मुतासिरीन की हिम्मत अफजाई के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस कैंप में काबिल डॉक्टरों के जरिए आंखों की तशखीस कराते हुए इनका सही इलाज करवाया जा रहा है और जरूरतमंद के लिए आंखों का ऑपरेशन करते हुए मुतासिरीन को मुफ्त दवाएं और मुफ्त चश्मे भी फराहम किए जा रहे हैं। ये कैंप अवाम की सहूलत के लिए 100 दिन जारी रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में MPTC M राधा सतीश, नवीपेट नायब सरपंच के मलेश, मंडल कोऑप्शन मेंबर अल्ताफुद्दीन, BRS कायदीन T पोशेट्टी, सूरी बाबू, MPDO सैयद साजिद अली व दीगर मौजूद थे। ప్రజలందరూ దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలని మరొకసారి నేను ఈ మండలంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కోరడం జరుగుతుంది। ఇది ఒక మంచి అవకాశం, ఎందుకంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ మన అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోయే విధంగా కృషి చేస్తుంది। అదేవిధంగా ఈరోజు మన బోధన ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా మండలంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని వినియోగించుకోవాలని, ఈ కంటివేలు ప్రోగ్రామ్ని వినియోగించుకోవాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ नवाही इलाकों व दूर दराज इलाकों में बसने वाली अवाम को सहूलतों के मकसद से शहर में सिटी बसों का किया गया था आगाज, मगर मुसाफिरीन की कमी के चलते सिटी बसें सड़कों से गायब। मई 2022 में निजामाबाद में सिटी बसों का आगाज किया गया। 6 बसें शहर की कई शाहराहों से गुजरते हुए मुसाफिरीन को मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाने का काम कर रही थी। बताया जाता है कि मुसाफिरीन की कमी के बाद सिटी बसें कहीं भी नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान कई मरतबा सिटी बसों का आगाज किया गया, लेकिन मुसाफिरीन की कमी के बाद सिटी बस को बंद करना पड़ा। शहर में 15,000 से ज्यादा ऑटो गश्त कर रहे। अवाम बिलखुसूस खवातीन ऑटो में सफर को महसूस तसव्वुर करती है, जिसकी वजह से शहर में सिटी बस नाकाम हो चुकी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। आंखों की रोशनी प्रोग्राम दूसरे मरहले का आगाज अवाम को हर सहूलत फराहम करने और जरूरत का ख्याल रखने वाली हुकूमत BRS अरकान सफरी।
पीडीएस चावल की गैर मजाज मुंतकिली को रोकने और इसमें मुलविस अफराद पर कार्रवाई का कांग्रेस का मुतालिबा वो एहतजाज, कलेक्ट्रेट के घेराव की कोशिश, पुलिस ने लिया हिरासत में, ज्वाइंट कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। तमाम डिवीजनों में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज, अवाम ने किया इस्तिफादा, अवाम से भरपूर इस्तिफादे की कायदीन की अपील। मुसाफिरीन की सहूलतों के लिए शहर में सिटी बसों का आगाज, मगर मुसाफिरीन की कमी के चलते सड़कों से सिटी बसें गायब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।